رحیم، میں رشید ملک W5 نیوز سے مخاطب ہوں، آپ کا میزبان۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چھڑ جانے والی حالیہ جنگ ہے۔ یہ جنگ کیسے چھڑی، کیوں کر چھڑی اور اس کے عالمی سطح پر کیا اثرات ہیں، اس بات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ جنگ فلسطین کی طرف سے حماس جو ایک عسکریت پسند تنظیم ہے، اس نے اسرائیل کے اوپر اچانک ایک خوفناک حملہ کیا، جس میں اسرائیل کی فوج کا ایک انتہائی قابل جرنل جو ہے وہ بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں، اس حملے میں اسرائیلی فوج اس قدر بکھلاہٹ کا شکار ہوئی کہ مجاہدین حماس کے جو عسکریت پسند تھے، جو دستے تھے، اس کے حملے سے تقریباً 2000 کے قریب فوجی اور اسرائیلی مارے گئے۔ اس بکھلاہٹ کے شکار ہونے کے بعد اسرائیل نے جوابی کارروائی کی اور فلسطین کے ساحلی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ہم نے تقریباً 1200 کے قریب فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ تو ہے جنگ کے وہ فگر جس میں ہلاکتیں ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اب آگے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل نے جارحانہ بمباری کا آغاز کیا ہے، اور یہ اس نے امریکہ کی اشیر بات کے بعد طرز جنگ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً کوئی 4000 سے زائد جو بڑی عمارتیں، کاروباری مراکز، بڑے پلازے اور گھر جو ہیں وہ ملیہ میٹ ہوئے۔ جنگ کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ فلسطین کے جو لشکر نے لشکر کشی کی، چھاتا بردار اس کارروائی کو کہا جاتا ہے، وہ ایک اسرائیل کے فوجی کیمپ پر حملہ آور ہوئے۔ ناظرین، یہ حملے کے بعد پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی، یہ جنگل کی آگ کی طرح خبر بریک ہوئی، اور آنن فانن پوری دنیا میں اس حوالے سے بیانات جاری ہونا شروع ہوئے۔ اسرائیل جو اس بحث میں اپنی خفیہ ایجنسی موساد کی ناکامی کے اوپر پورے دنیا میں سبکی کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ موساد جس کا دعویٰ تھا کہ وہ دنیا کی ایک سپر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ فلسطین میں جو تنظیم حماس تیاریاں کر رہی تھی اسرائیل کی فوجی بیس پر حملے کے لیے، انہوں نے اس قدر خفیہ انداز میں تیاری کی کہ موساد بالکل بے خبر رہی، اور نہ وہ حکومت کو رپورٹ کر سکی اور نہ ہی وہ فوجی قیادت کو اس حملے سے متعلق بتانے میں کامیاب ہو سکی۔ پوری دنیا میں اس کی جدت، اس کی شدت جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور اس کے سپر ہونے کے دعوے کو زمین بوس کر دیا حماس کے اس حملے نے۔ ناظرین، اس حملے میں براہ راست جن ممالک نے فوری طور پر رد عمل دیا اور بیانات جاری کیے، اس میں سر فہرست ہے ایران۔ بالکل دو ٹوک انداز میں اس نے کہا کہ حماس نے جو حملہ کیا ہے ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور بارڈر کے ساتھ فلسطین کے ساتھ جڑے ہوئے ترکی کے صدر طیب اردوان نے اس حملے کی بہت محتاط انداز میں ایک جامع حمایت کا اعلان کیا، جس سے حماس کی تنظیم کے ان عسکریت پسندوں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہیں ایک حوصلہ ملا کہ دنیا کے جو ممالک اس جنگ کے دوران اپنے آپ کو اس جنگ سے جوڑ رہے ہیں، اسلامی دنیا کے یہ ٹاپ کے جو ممالک ہیں،
बड़े मुल्क हैं ईरान और तुर्की, उसने इस हमले की तायद भी की और हमायत भी की। नाजरीन, यहाँ ये बात देखना भी लाजमी है कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क होने के नाते इस हमले के बारे में बड़े खारजी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, खारजा पॉलिसी के पेश नज़र एक इंतहाई ज़िम्मेदारी के अंदाज में बयान जारी करता है कि जंग को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। वो ममालिक जो अहम ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, जिनका पूरी दुनिया में असर व रसूख है, वो अपना किरदार अदा करके अमन आमा को, अमन आलम को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। इसराइल पर हमले के बाद सबसे पहले जिस मुल्क ने बयान जारी किया वो अमेरिका है। पूरी दुनिया में अमेरिका को इसराइली रियासत के साथ दोस्ताना और शदीद दोस्ताना तल्क़ात के हवाले से जाना जाता है। फौरी तौर पर उसने न सिर्फ मजम्मत जारी की फ़लस्तीन के इस अस्करियत पसंद तंजीम के हमले की, बल्कि उसने यहाँ तक कहा कि इसराइल अपने जो इलाके हमास ने कब्ज़े में लिए हैं उनको वापस लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है। नाजरीन, यहाँ पर यह बात भी अहम है कि हमास के हमले की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि बुखलाए हुए इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौरी तौर पर जनूबी पट्टी में अपने गैस के बड़े फील्ड को बंद कर दिया, जिसका मकसद ये था कि वो हमास और फ़लस्तीनियों को गैस की सप्लाई मनक़ता करके उनके लिए मुश्किलात पैदा करे। वो इसमें कहाँ तक कामयाब हो सका, इसका जायज़ा लिया जा सकता है और उसकी ये हिकमत अमली काफ़ी हद तक कारगर भी साबित हुई है। तो मैं ये बताता चलूँ कि इसराइल ने इस हमले के जवाब में जारहाना अंदाज़ अख्तियार करते हुए फ़लस्तीनियों के रहायशी इलाकों को, कारोबारी इलाकों को, हस्पतालों को निशाना बनाया, जिसमें औरतें, बच्चे और बूढ़े उनकी बेदर्दी से कैजुअल्टीज़ हुई हैं। ईरान इस हवाले से जो किरदार अदा कर रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। उर्दन, जहाँ ईरान का असर रसूख है, और उसके ज़ेर असर तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमास के हमले की तायद भी की है, हमायत भी की है और वहाँ पेशकदमी के लिए भी उसने हदिया दिया है। इस सूरत हाल में जहाँ अमेरिका की शीरबाज से इसराइल जारहाना रवैया अख्तियार करने जा रहा था, वहाँ पर रूस ने एक ऐसा तर्ज अमल अख्तियार किया, बयान दिया कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का हक़ तस्लीम करना होगा, जिसने ताकत के तवाज़न को इसराइल के पलड़े में गिरने से रोका। ये बात एक ऐसे वक्त में सामने आई जब मुस्लिम दुनिया और इस्लामी ममालिक की तंजीम ने अमन की अपील की, लेकिन इस दौरान ओमान ने, जो मुस्लिम मुल्क है, छोटा मुल्क है लेकिन माशी लिहाज से मजबूत मुल्क है, उसने जो बयान दिया है उसने यूरोपीय यूनियन को, यूरोपियन ममालिक को और ख़ुद अमेरिका को भी हिला के रख दिया है। ओमान ने कहा कि हम यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई रोक देंगे, हम उनको तेल नहीं देंगे। इस सूरत हाल में यूरोप के लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, इसका अंदाज़ा यूरोप को, यूरोपीय ममालिक को बआसान तारीख मालूम है। और यही वजह है कि अब इन ममालिक की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से क़याम अमन की बात का मुतालबा किया जा रहा है
क़याम अमन का मुतालबा किया जा रहा है। नाजरीन, इस जंग के जो असरात ज़ाहिर हुए हैं उसने दुनिया की मैशियत पर कारी ज़रब लगाई है, ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ मैशियत कमज़ोर है और माशी हालात एक आम आदमी के लिए मुश्किलात लिए खड़े हैं, इसके ज़्यादा असरात ज़ाहिर हुए हैं। पूरी दुनिया की मैशियत के हवाले से अगर बात करते हैं तो इस जंग से फौरी तौर पर जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि पेट्रोल की, तेल की आलमी मंडी में कीमत में फौरी तौर पर 4% फ़ी बैरल के हिसाब से इजाफ़ा हुआ, जिससे दुनिया में एक महंगाई की नई लहर आने की पेशीनगोई की गई और महंगाई की इस लहर ने पाकिस्तान को बराह रास्त मुतासर किया और यहाँ अशिया खुर्दनोश के नरखों में इजाफ़ा हुआ। अब सूरत हाल जिस तरह से डेवलप हो रही है नाजरीन, हम आज इसका मुख्तसर तजज़िया करते हुए आपको सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि इस सूरत हाल ने दुनिया में अमन की ज़रूरत को शिद्दत से उजागर किया है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल फ़लस्तीन के इस अचानक हमले से, फ़लस्तीन की तंजीम हमास के इस अचानक हमले से अपनी बौखलाहट का बदला लेने के लिए वहाँ केमिकल हथियार इस्तेमाल करने की एक पूरी कोशिश में है और वहाँ फास्फोर्स जैसे बम जो हैं, फास्फोर्स बम जैसी वेपन को भी इस्तेमाल करने से गुरेज़ करता हुआ दिखाई नहीं देता। पूरी दुनिया इस अमल की मज़म्मत कर रही है, ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक इस अमल की मज़म्मत कर रहे हैं और वो इस तबाही को रोकने के लिए जो है अमन को बहाल करने के लिए कोशिश हैं। हमास ने इस हमले में जो कामयाबी हासिल की है वो ये है कि मस्जिद अक्सा पर एक तवील अरसे के बाद उसने यहूदियों के कब्ज़े को, इसराइली फ़ौज के कब्ज़े को ख़त्म किया और वहाँ उम्मत मुसलमान का झंडा लहराया, फ़लस्तीन का झंडा लहराया, हमास का झंडा लहराया, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों में एक खुशी की लहर थी। लेकिन जंग बहरहाल जंग है, उसके असरात होते हैं, जंग तबाही का पेशखमा होती है। हम इस हवाले से ख्वाहिश रखते हैं कि वो ममालिक, खा यूरोपी ममालिक हैं, खा इस्लामी ममालिक हैं, अपना असर व रसूख करते हुए, इस्तेमाल करते हुए इस जंग को रोकने के लिए आगे बढ़ें और वहाँ अमन को बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। यहाँ ये बात आपके इल्म में लाना ज़रूरी है कि सऊदी फरमारवा के साथ फ़लस्तीन की तंजीम हमास के कायदीन ने तवील बातचीत की है, फ़लस्तीन के हुकाम ने बात की है। नेतन्याहू अमेरिका पर ज़ोर दे रहा है कि फ़लस्तीन समेत दीगर मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ जो है वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे और उसको इस हमले का बदला लेने की मुकम्मल हमायत करे, जैसा कि वो कर भी रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल मकबूजा इलाक़ों को वापस लेने के लिए जंगी कार्रवाई करने का मजाज है। इस तरह की सूरत हाल से हालात मज़ीद ख़राब होंगे, बिगड़ जाएंगे, अमन को शदीद दचका पहुँचेगा। हम ये एक बार फिर आपको बताएं और रिक्वेस्ट करेंगे उन ममालिक से कि वो इस अमन को ख़राब होने से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान की हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ बनता है और ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो खित्ते के अमन के लिए अपने किरदार को अदा करते हुए अमन की बहाली के लिए, जारियत को रोकने के लिए एक ऐसी ज़िम्मेदाराना पेशरफ्त की तरफ बढ़े, दुनिया को इकट्ठा करे और खित्ते के अमन को बहाल करने में अपना असर व रसूख, अपना किरदार अदा करे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।